آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ کانگریس پارٹی خواتین ریزرویشن کے خلاف نہیں، بی جے پی مدعے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے، تلنگانہ ایم پی سی کرن کمار ریڈی نے لگایا الزام۔ حیدرآباد میں 2 جون سے ایم ایم ٹی ایس میں مفت سفر کی سہولت حکومت کے زیر غور، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی باضابطہ کریں گے اعلان۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گورنر سے کی ملاقات، قانون ساز کونسل کے لیے گورنر کے کوٹے سے زیر التوا نامزدگیوں کو ہری جھنڈی دکھانے کے لیے کی نمائندگی۔ تلنگانہ میں لو لگنے سے 4 افراد کی موت، شدید گرمی اور تیز گرم ہواؤں کا سلسلہ ہے جاری۔ بوتھ عادل آباد کے سابق رکن اسمبلی نے تلنگانہ جیوگرافی میں کی شمولیت کے کویتا سے کی ملاقات۔ آندھرا پردیش عازمین حج کا پہلا قافلہ ہفتے کو وجے واڑہ سے ہوا روانہ، ریاستی وزراء نے ایئرپورٹ جانے والی بسوں کو دکھائی جھنڈی۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے راج بھون پہنچ کر گورنر شیو پرتاپ شکلا سے تفصیلی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں گورنر کوٹے کے تحت زیر التوا 2 MLC ناموں کی فوری منظوری کا معاملہ زیر بحث آیا۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین اور معروف سماجی کارکن و ماہر تعلیم پروفیسر کودنڈرام کے ناموں کو منظوری دینے کی باضابطہ اپیل کی۔ ذرائع کے مطابق حکومت اس معاملے کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اظہر الدین اس وقت کسی بھی ایوان کے رکن نہ ہونے کے باوجود کابینہ میں شامل ہیں۔ آئینی اصولوں کے مطابق کسی بھی وزیر کو حلف لینے کے بعد 6 ماہ کے اندر اسمبلی یا کونسل کا رکن بننا لازمی ہوتا ہے۔ اظہر الدین کی یہ مدت 30 اپریل کو مکمل ہونے جا رہی ہے، اور اگر اس سے قبل انہیں MLC نامزد نہیں کیا گیا تو انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ترجمان عبدالمجید حکیم الہی حیدرآباد کے دورے پر ہیں۔ دورے کے دوران عبدالمجید حکیم الہی نے دارالشفا میں واقع علامہ سرتوخ مبارک کی زیارت کی۔ اس موقع پر مقامی شیعہ برادری کے افراد نے سپریم لیڈر کے ترجمان عبدالمجید حکیم الہی کا پرجوش استقبال کیا۔ انہوں نے دارالشفا میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آبنہ ہرمز کھلی ہوئی تھی، تاہم ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ کے باعث اسے سیکورٹی کی وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے توقع کا اظہار کیا کہ آبنہ ہرمز بہت جلد دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے ہند ایران تعلقات کو مستحکم قرار دیا اور ہندوستان اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات کے باعث ہندوستان کو تیل کی ترسیل اور آبنہ ہرمز کے ذریعے ٹینکرز کی آمد و رفت پہ فائدہ ہونے کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اور ہندوستان کے تعلقات 5000 سالہ تاریخ پر مبنی ہیں۔ ہندوستان سے ایرانی عوام کا رشتہ ثقافت، تہذیب، تعلیم، انسانیت اور فلسفے کے ذریعے مربوط، اور یہ تعلقات مزید مستحکم ہوتے رہیں گے۔ And we announced it clearly and frankly. We said that we are not ready for negotiation. But we wanted to show to the world that we are not the people of war. We want to peace in our region. Because due to this war, a lot of countries got a lot of problems. Because the price of gas is increased, the price of oil is increased, and the price of even goods and other issues and materials are increased. A lot of factories in different countries are closed. A lot of restaurants and hotels got closed. So we wanted to show that we don't want war, we want peace in this region. And we went for negotiation, and
our spokesperson of parliament, Dr. Ghalibaf, from the beginning said that there is no trust on other side, but we go and we understood that they are not ready for negotiation. Now also we say that they want to get something which they couldn't get it through war, but they want to get it through negotiation. And I'm sure that they will not get it. Iran is very, very strong, and Iran is ready to defend itself. Iran is ready to defend its dignity. Iran is ready to defend its humanity, freedom, and justice. I'm sure that Iran never, as they want, is submit itself as unconditional surrender, which they mentioned. Regarding the allies, تلنگانہ میں شدید گرمی اور تیز گرم ہواؤں نے عوام کی زندگی کو متاثر کر دیا ہے، جہاں دن کے درجہ حرارت معمول سے کہیں زیادہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس خطرناک صورتحال کے نتیجے میں لو لگنے سے 4 افراد کی موت واقع ہوئی ہے، جس نے مختلف اضلاع میں تشویش کی لہر دوڑا دی۔ تفصیلات کے مطابق پیدا پلی ضلع کے منتھنی منڈل کے چنا اوڈیلا گاؤں کے رہنے والے داسری رمیش 50 سالہ اور راجنا سلسلہ ضلع کے بوئن پلی منڈل کے وینکٹ راؤ پلی کے نلالا موہن 46 سالہ مکان کی تعمیر کے دوران لو لگنے سے فوت ہو گئے۔ اسی طرح کاماریڈی ضلع کے یلا ریڈی منڈل کے ادوی لنگال گاؤں کے لنگال رامولو 59 سالہ کھیت کو پانی دینے گئے تھے کہ اچانک گرمی کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ادھر ورنگل ضلع کے نرسمپیٹ منڈل کے بوجیا نائک ٹانڈا کے رہنے والے بھوکیا جنکو 65 سالہ ہفتے کی دوپہر باغ میں کام کرتے ہوئے لو لگنے سے گر پڑے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں گرمی کی شدت مزید بڑھ سکتی ہے، جس کے پیش نظر عوام کو دوپہر کے اوقات میں غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کرنے، زیادہ پانی پینے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ بدھ کے سابق رکن اسمبلی راتھوڑ باپو راؤ نے آج تلنگانہ جاگرتی میں شمولیت اختیار کر لی۔ دفتر تلنگانہ جاگرتی بنجارہلز میں جاگرتی کی صدر کے کویتا نے انہیں پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر باضابطہ طور پر خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے راٹھوڑ باپو راؤ نے کہا کہ تلنگانہ ریاست کے قیام کے بعد بہتر دنوں کی امید میں وہ اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے کر بوتھ حلقے میں عوامی خدمت کا انہوں نے آغاز کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عادل آباد جیسے جنگلاتی ضلع میں کویتا نے 1 ہفتے تک میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا تھا، جس سے متاثر ہو کر اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہی وہ سیاست میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے، تاہم بعد میں آنے والوں کو وزارتیں مل گئی، جبکہ انہیں تیسری بار ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اب کویتا کی قیادت میں نئی سیاسی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ تلنگانہ کو ایک خاتون وزیر اعلیٰ کی صورت میں کویتا کی قیادت حاصل ہو۔
तेलंगाना में भुवनगिरी के रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने इतवार के रोज़ कहा है कि कांग्रेस खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इंतखाबी फ़ायदे के लिए इसे सियासी रंग दे रही है। किरण कुमार रेड्डी ने एक वीडियो बयान में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन से मुताल्लिक़ हालिया रिमार्क्स तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में होने वाले इंतखाबात से कबल सियासी फ़ायदा हासिल करने के मकसद से किए थे। उन्होंने 16, 17 और 18 अप्रैल को पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने पर मरकज़ की मजम्मत की और दावा किया कि इंतखाबी फ़ायदे को मद्देनज़र रख कर किया गया था। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि हल्के बंदियों की डीलिमिटेशन 2027 की मरदमशुमारी के बाद ही होगी। उन्होंने सवाल किया कि 2023 में मंजूर शुदा वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2024 के बाद भी नाफिज क्यों नहीं किया गया। నరేందర్ మోడీ గారు నిన్న సాయంత్రం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడటం జరిగింది. ముఖ్యంగా నరేందర్ మోడీ గారి ఆలోచన ఏంటంటే అసలు ఈ 16, 17, 18 తారీఖులలో పార్లమెంట్ పెట్టడం కానీ, ఈ బడ్జెట్ సమావేశంలో ఏదైతే సెన్సస్ 2027లో వచ్చే సెన్సస్ తర్వాత జరగాల్సిన డీలిమిటేషన్ కానీ, సీట్ ఎక్స్టెన్షన్ కానీ ఏదన్నా ఉంటే డిస్కస్ చేయాల్సింది అర్జెంటుగా తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి వెస్ట్ బెంగాల్ ఎన్నికలు, తమిళనాడు ఎన్నికలలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీజేపీ పట్టు సాధించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ 3 రోజుల సమావేశాలు ముఖ్యంగా అత్యవసరంగా ఈ యొక్క డీలిమిటేషన్ మరియు ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సీట్స్ గురించి తెచ్చినట్టుగా క్లియర్గా తేటతెల్లమైంది. ఎందుకంటే మహిళా రిజర్వేషన్ కానీ, మహిళలకు కానీ ఇండియా కూటమిలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ కానీ, డిఎంకే కానీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ కానీ ఎవ్వరూ వ్యతిరేకం కాదు. కావాలని నరేందర్ మోడీ పెట్టిన బిల్లులో మహిళా రిజర్వేషన్తో పాటు డీలిమిటేషన్, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సీట్స్ పెట్టి 850 సీట్లు చేస్తామని చెప్పి ప్రోరేటా ప్రకారం చేస్తాం. तेलंगाना में शदीद गर्मी और तेज़ गर्म हवाओं यानी लू ने आवाम की ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया है, जहां दिन के दर्जे हरारत मामूल से कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस ख़तरनाक सूरत हाल के नतीजे में लू लगने से 4 अफराद की मौत वाक़ई हुई है, जिसने मुख्तलिफ अज़ला में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। उधर ज़िले वरंगल, ज़िले पेद्दापल्ली, ज़िले सिरसला और कामारेड्डी में ये अमवात हुई हैं। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ सकती है, जिसके पेश नज़र आवाम को दोपहर के औक़ात में गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करना और ज़्यादा पानी पीने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर दोनों शहरों के मुख्तलिफ हलकों में SIR के सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसके बाद आवाम की रहनुमाई भी की जा रही है। इस सिलसिले के तहत AIMIM प्राइमरी यूनिट सिकंदराबाद के सुदूर और सरगर्म कारकुनों की जानिब से शब रोज़ काम का सिलसिला जारी है। वारिसगुड़ा बोधन नगर में भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से SIR के सिलसिले में आवाम की रहनुमाई का काम जारी है। मुंतज़मीन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। कैमरा आता है? हाँ आता है। फोटो ले ले। मैं तो लिख के दे देता हूँ। फोटो पहले आगे तो फोटो भी ले दे, लिख के भी दे देंगे। कौन आ रहा है इसमें बात करता हूँ? अरे मैं वो एड्रेस मंगा लो खाली, अब 2 नंबर में आपकी बेटी को क्या आपके अम्मी अब्बा को क्यों डाला? नाना नानी है, दादा दादी या अब्बा से इफ्तिखार में हमारे यहाँ के AIM
पार्टी के क्या बोलते हैं सो प्रेसिडेंट है वारिसगुड़े डिवीजन के, आप क्या बोलते हैं सो बौद्धा नगर में क्या बोलते हैं सो आज संडे 19th of अप्रैल 2026 को कैंप ऑर्गेनाइज करें। यहाँ पर क्या बोलते हैं SIR असिस्टेंस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं क्लोन मैपिंग कर दे रहे हैं और सर्चेस कर दे रहे हैं लोगों को वोटर फॉर्म 6 और 7, 8 यानी जिसके वोटर कार्ड बने हुए नहीं उनको 6 फॉर्म के तहत असिस्ट कर रहे हैं, और जिनके डिलीशन कराना है जो एक्सपायर हो गए हैं जो जिसके डुप्लीकेट्स है उनको फॉर्म 7 के तहत डिलीशन करवा रहे हैं, और फॉर्म 8 के तहत हम लोग क्या बोलते हैं सो कोई करेक्शन है, शिफ्टिंग है, नेम्स में स्पेलिंग्स में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन है, वो करके दे रहे हैं हम लोग। और क्या बोलते हैं सो किसी के नाम सर्चेस वगैरह करना है तो 3-4 वेस में हम क्या बोलते हैं सो नाम सर्च करके दे रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको एक बताता हूँ कि भाई जिनके नाम 2002 के लिस्ट में उनके खुद के नहीं निकले और उनके पेरेंट्स के भी नहीं निकले और ग्रैंड पेरेंट्स के भी नहीं निकले, वो लोग मायूस ना हो, वो लोग काम ये करें कि आप RTI दाखिल कर बुद्धा ऑफिस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टैंक बंड पर है वहाँ पर RTI दाखिल कर आप क्या बोलते हैं सो आप अपना कॉन्स्टिट्यूंसी नेम यानी AC नंबर जो आता है वो और पार्ट नंबर आप दोनों वहां पर दें, और ताकि क्या बोलते हैं सो आप 1999 का इलेक्टोरल रिकॉर्ड निकाले और 1994 जो यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश जब एक था तब उसमें 1994 में और 1999 में इलेक्शंस हुए थे, जब का इलेक्टोरल लिस्ट निकाल लिए आप पर्टिकुलर रीजन या जैसा कि बुद्धा नगर 142 पार्ट आता यहाँ का निकाल लिए तो शायद मुमकिन है 100% आपका नाम या आपके पेरेंट्स का नाम आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम निकल आएगा इंशाअल्लाह ताला। उस तरीके से आप क्या बोलते हैं SIR प्रोसेस में 2026 में अपना नाम दर्ज करा सकते अपने वालिदैन अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स और के साथ लिंक करवा कर, जिसका नाम नहीं निकला उनके लिए अपडेट है भाई। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है, जहां तेलंगाना हुकूमत ने MMTS ट्रेनों में मुफ्त सफ़र की पेशकश करके रोज़मर्रा सफ़र को आसान बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। इम्कान है कि रियासत की यौम तासीस यानी 2 जून से इस सहूलत का आगाज़ किया जाएगा, जिससे हज़ारों मुसाफिरों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। हुकूमत ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक भीड़ को कम करना है बल्कि माहौलियाती आलूदगी पर भी काबू पाना है। मंसूबे को इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए तजुर्बाती बुनियादों पर नाफिज करने की तजवीज़ है, जिसके तहत मुसाफिरों के टिकट का मुकम्मल खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस हवाले से 16 अप्रैल को मुनक़िदा आला सतह इजलास में तफसीली गौर व खौस किया गया, जिसके बाद तजावीज़ साउथ सेंट्रल रेलवे को रवाना कर दी गई हैं। मंजूरी मिलते ही इस स्कीम को अमली जामा पहनाने की तैयारियां तेज़ कर दी जाएंगी, जो शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में एक बड़ा इनकलाब साबित हो सकती हैं। हैदराबाद के इलाके याकुतपुरे के रहायशी नौजवान मोहम्मद आरिफ अहमद दुबई में पुरस्रार हालत में इंतकाल कर गए। बताया जाता है कि वो शारजा एयरपोर्ट में मुलाजिमत के सिलसिले में दुबई गए हुए थे, जहां उनकी अचानक मौत वाक़ हुई, जिससे घर वालों में गम की लहर दौड़ गई। हैदराबाद में इस अफसोसनाक वाक़े के बाद सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दुबई में क़ायम कौंसल जनरल दुबई को मकतूब रवाना करते हुए मैयत को फौरी तौर पर वतन वापस भेजने की अपील की है। अपने मकतूब में बैरिस्टर ओवैसी ने हकाम से दरख्वास्त की है कि मैयत की मुंतकिली के अमल को तेज़ किया जाए, ताकि हैदराबाद में मौजूद मुतवफ़ी के अरकान ख़ानदान जल्द अज जल्द तदफीन अदा कर सकें। उन्होंने गमज़दा ख़ानदान के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की भी अपील की। आंध्र प्रदेश से आज़मीन हज का पहला काफ़िला आज गोनावरम एयरपोर्ट विजयवाड़ा से रवाना हुआ। इस तरह रियासत आंध्र प्रदेश से हज 2026 के लिए आज़मीनी हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। वज़रा के रविंद्रा और एन मोहम्मद फ़ारूक ने गुंटूर के रुकन असम्बली नसीर अहमद, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन अब्दुल अजीज़, आंध्र प्रदेश MFC चेयरमैन मौलाना मुश्ताक अहमद, AP स्टेट हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख गौस पीर और दीगर अक़लियती क़ायदीन के हमरा आज़मीन हज को एयरपोर्ट ले जाने वाली बसों को झंडी दिखाई। आज़मीन हज की रवानगी से कबल ख़ुसूसी दुआ की गई, जिसमें तमाम मोज़िदीन और आज़मीन हज ने हिस्सा लिया।
قبل ازیں عازمین حج کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی گئی جس میں قائدین نے وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو کی نگرانی میں کیے گئے انتظامات کے بارے میں بتایا. انہوں نے وجے واڑہ امبارکشن پوائنٹ سے سفر کرنے والوں کے لیے فراہم کی گئی سہولتوں پر روشنی ڈالی. ریاستی وزیر این محمد فاروق نے کہا کہ محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے بالخصوص پرنسپل سیکرٹری کی رہنمائی میں تمام انتظامات کیے گئے ہیں. بزم احباب خطر کی جانب سے معروف شاعر ندیم ماہر کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں ان کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اس موقع پر ایک یادگار مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں مقامی شعراء نے شرکت کی اور اپنا کلام پیش کرتے ہوئے داد وصول کی. تقریب کو کامیابی کے ساتھ منعقد کرنے میں ڈاکٹر مرزا، ڈاکٹر فاروق، ڈاکٹر خالد شریف، انور انصاری اور ڈاکٹر منور امجد خان کا اہم کردار رہا. مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر ندیم جیلانی اور مہمان اعزازی کے طور پر عبید طاہر اور ڈاکٹر حمید شہید بھٹی نے اس تقریب و مشاعرے میں شرکت کی. ڈاکٹر فاروق حیدر نے مشاعرے کی صدارت کی جبکہ کنوینر مشاعرہ ڈاکٹر مرزا تھے. انہوں نے اپنی پراثر تقریر سے شرکاء کا دل جیت لیا. بزم احباب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز امجد خان، عابد خان، گلریز سید، یوسف خان، محمد جابر، ڈاکٹر مقتدر اور دیگر اراکین نے شاعر ندیم ماہر کی ادبی خدمات کی ستائش کی. تقریب کے انتظام و انصرام میں علی عمران، جنید نظام، محمد نقشبندی، محند حماد اور معراج ملک نے حصہ لیا. مشاعرے میں شریک ہونے اور اپنا کلام سنانے والے شعراء میں ڈاکٹر ندیم جیلانی، ندیم ماہر، ڈاکٹر حمید بھٹی شہید، عزیز نبیل، احمد اشفاق، آصف شفیع، اطہر اعظمی، اشفاق دیشمکھ، راقم اعظمی، رضا حسین اور سالم حسین شامل تھے. کنوینر کے شکریہ اور پرتکلف عشائیے پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا. کل ہند مجلس تعمیر ملت کی جانب سے خواتین اور لڑکیوں کے لیے ٹیلرنگ کورس
मेहंदी डिज़ाइनिंग कोर्स, ब्यूटिशन कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश कोर्स और दीगर कोर्सेज की मुफ्त तरबियत फराहम करने के लिए मौला अली में स्किल डेवलपमेंट सेंटर का आगाज़ किया गया है। एक मजबूत खुद कफील कम्युनिटी बनाने में इस तरह के सेंटर्स का अहम रोल होता है। सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत अय्यूब हुसैनी ने इस मुफ्त स्किल डेवलपमेंट सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के पुरुलिया में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रियासत की तृणमूल हुकूमत पर शदीद तनकीद की है, साथ ही कई इंतखाबी ऐलानात भी किए हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में धान के किसान परेशान हैं, कई आबपाशी प्रोजेक्ट ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं और किसानों के आंसू खुश्क नहीं होते हैं। उन्होंने टीएमसी हुकूमत को एक बेरहम हुकूमत करार देते हुए कहा कि ये हुकूमत सिर्फ लूट मार में मसरूफ़ है और लुटेरों को ही तहफ़्फ़ुज़ देती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खिताब में टीएमसी की लूट को रोकने और खेतों तक पानी की रिसाई का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बंगाल के किसानों के साथ हर कदम पर धोखा किया है। टीएमसी के सिंडिकेट का मंडियों और कोल्ड स्टोरेज पर कंट्रोल है। बीजेपी इस सिंडिकेट के कब्जे को ख़त्म करेगी। किसानों को डबल इंजन हुकूमत के तहत दुगना फ़ायदा मिलेगा, जबकि ये मोदी की गारंटी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कल शाम कौम से खिताब के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने एहतजाज शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को कांग्रेस इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे रही है। इस एहतजाज में कांग्रेस की खातून कारकुनान समेत कांग्रेस लीडर अलका लांबा भी मौजूद थी। ज़्यादा हो गया, जल्दी करिए ना भैया, आप इधर हट जाओ, सीपीआई राज्यसभा रुकन संतोष कुमार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक ख़त लिखा है। इस ख़त में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम अपने हालिया खिताब के ज़रिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस मामले में फौरी मदाखलत का मुतालबा किया है। 19 अप्रैल को लिखे गए ख़त में रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का ये खिताब उस वक्त सामने आया जब 5 रियासतों में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। ये खिताब सियासी नवीयत का था, जिसमें जानिबदाराना बातें और मुंतखब हक़ाइक़ शामिल थे। उनका मकसद एक ऐसे मसले पर अवामी राय को मुतासिर करना था जिस पर इस वक्त ज़ोरदार सियासी बहस जारी है। बीजेपी लीडर और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमिलनाडु के येरोडो में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिवा कुमार कार्तिका की तायद में मुनक़िद एक रोड शो में शिरकत की। शिवा कुमार मोडा को ऋषि असम्बली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। इस मौके पर अमित शाह की रैली में शामिल गाड़ियों में फूल फेंके गए। सैकड़ों बीजेपी कारकुनान भी इस रैली में शिरकत करते हुए नजर आए।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्ज़ाम लगाया है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बावजूद भी वज़ीर आज़म ने सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन खुसूसन कांग्रेस को निशाना बनाया, जो जमहूरियत और आइन के ख़िलाफ़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कल रात 8:30 बजे कौम से खिताब के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस खिताब पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तवील पोस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म पर शदीद तनक़ीद की और कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए। खड़गे ने कहा कि अपने बयान में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए वज़ीर आज़म ने एक सरकारी खिताब को सियासी तकरीर में तब्दील कर दिया, जिसमें इल्ज़ामात तराशी और झूठे दावे किए गए। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बावजूद वज़ीर आज़म ने सरकारी मिशनरी का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन खुसूसन कांग्रेस को निशाना बनाया है, जो जमहूरियत और आइन के खिलाफ है। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवा कुमार ने कहा है कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल कांग्रेस पार्टी की ही देन है, लेकिन इस बिल को पेश करने का ये मुनासिब वक्त नहीं था। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपोजिशन के साथ मुशावरत करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ हिटलर का निज़ाम नहीं बल्कि जमहूरी निज़ाम कायम है। वो इंतखाबात के दौरान बिल पेश करते हुए पूरे हलकों को तब्दील नहीं कर सकते, उन्हें सबको एतमाद में लेना होगा। इसलिए अपोजिशन ने अच्छा काम किया, ये इंडिया इत्तेहाद की कामयाबी है। DK शिवा कुमार ने कहा कि मैं इंडिया ग्रुप के तमाम अरकान पार्लियामेंट को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने उसकी मुखालिफत की और तफसीली बहस का मुतालबा किया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। कांग्रेस पार्टी ख़वातीन रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, बीजेपी मुद्दे को सियासी रंग दे रही है। तेलंगाना MP C किरण कुमार रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम। हैदराबाद में 2 जून से MMTS में मुफ्त सफ़र की सहूलत हुकूमत के ज़ेरे गौर, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बाज़ाब्ता करेंगे ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर से की मुलाकात। कानून साज कौंसिल के लिए गवर्नर के कोटे से ज़ेरे इल्तिवा नामजदगियों को हरी झंडी दिखाने के लिए की नुमाइंदगी। तेलंगाना में लू लगने से 4 अफराद की मौत, शदीद गर्मी और तेज़ गर्म हवाओं का सिलसिला है जारी। बूथ आदिलाबाद के साबिक़ रुकन असम्बली ने तेलंगाना जागृति में की शमूलियत के कविता से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश आज़मीन हज का पहला काफिला हफ्ते को विजयवाड़ा से हुआ रवाना। रियासती वज़रा ने एयरपोर्ट जाने वाली बसों को दिखाई झंडी। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।